Now let's talk about electrophilic substitution reaction exhibited by the ether, right? So before I put you through the some of the very important chemical reaction, I want you to get it what kind of reaction ether can undergo and why. So the thing is that if we talk about the ether containing a aryl group, then we remember this may be the example, right? Or this may be the example. Now the first thing is that this exhibit plus R effect, this exhibit plus R effect, something like this. So what happened? The electron density increases towards the ortho and para position. So what is happening? This bond has undergone cleavage. So there will be a double bond O with a R. Now this has a positive charge. This become negatively charged. In the next step, this is something मैंने पहले already बता रखा है कि plus R effect होता क्या है. अगर आपको नहीं पता है, तो what you have to do, just go back to haloalkane chapter playlist, and there you will find a topic why haloarenes do not undergo nucleophilic substitution reaction, and in that video I have explained what is this plus R effect, although though I am also repeating a bit of that here. So what happened in the next step? In the next step, this double bond undergo cleavage, and this lone pair converts into a single bond. So this double bond is still there. There is one double bond here, a plus charge, and there will be a lone pair with a minus charge. In the next step, this is what happened. This is what happened there. So it looks like you might remember what I am trying to do. So what happened here? There is the double bond, and there is a double bond. Now what happened? There is a lone pair, and there is one double bond here, and there is another double bond here. So these four resonance structure actually represent कि जो alkyl phenyl ether है या alkoxy benzene है या ये ether है, ये प्लस आर इफेक्ट एग्जिबिट करता है. तो आई थिंक ये 4 स्टेप काफी रहेगा. वैसे एक और स्टेप है, सो लेट मी डू दैट इवन दैट वन. सो दिस इज व्हाट हैपेन इन द लास्ट स्टेप, राइट? यहां एक डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड यहां है, दूसरा डबल बॉन्ड यहां है, यहां पर नहीं है ऑक्सीजन, एंड देयर इज आर. नाउ बोथ लोन पेयर्स हैव बीन रिस्टोर्ड. तो क्या देखते हो आप, यहां पे ध्यान देना, क्या देखते हो आप कि माइनस चार्ज सेकेंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है, और अगेन सेकेंड पोजीशन पे है. तो इसका मतलब क्या है? देयरफॉर एल्कोक्सी ग्रुप, यहां एल्कोक्सी में किसको कह रहा हूं? इसको बोल रहा हूं मैं एल्कोक्सी. ये ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड एल्कोक्सी. तो ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है, ग्रुप increases electron density at ortho and para position. Ortho and para position. So any incoming group will be directed to ortho. What ortho is? Let me write 1, 2, and para position. What para is? Para represent to 1 and 4. Para position.
चलो एक बार इसको डिटेल में देखो। मैंने क्या बताया एक्चुअली कि ये जो एल्कोक्सी ग्रुप है अगर बेंजीन के ऊपर है तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर से हमें पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बेंजीन पे बढ़ाता है सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, जो हमें पता चलता है माइनस चार्ज की मदद से। आप देखो माइनस सेकंड पोजीशन पे है, फोर्थ पोजीशन पे है और अगेन माइनस सेकंड पोजीशन पे। याद रखो सेकंड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन, सेकंड पोजीशन है। तो इसका मतलब है कि ये बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है वो इन 3 पोजीशन पे बढ़ा रहा है। तो अगर हम इस ईथर के साथ कोई इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन करवाते हैं तो जो नया इलेक्ट्रोफाइल है वो इन्हीं में से किसी एक पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, या दोनों पे जाएगा। तो अब हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं कि आखिर ये ईथर जो है कौन कौन से रिएक्शंस को करता है। तो अब अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं तो द फर्स्ट रिएक्शन आई एम टेकिंग इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन। अब हैलोजिनेशन में क्या होगा, आपको क्या करना है, एक ईथर लेना है जिसमें एराइल ग्रुप है और साथ में एल्कोक्सी ग्रुप है। अब हम इसको रिएक्ट किससे करवा रहे हैं, इसको रिएक्ट करवा रहे हैं ब्रोमीन वाटर के साथ। ब्रोमीन जो कि इथेनोइक एसिड में डिसॉल्व है, इथेनोइक एसिड में डिसॉल्व है। अब इससे क्या होगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा। ब्रोमीन ध्यान रखना है ऐड हो जाएगा। तो ब्रोमीन या तो सेकंड पोजीशन पे ऐड होगा या फोर्थ पे या दोनों पे। तो हम क्या करेंगे, 2 प्रोडक्ट बनाएंगे। एक तो ये है जिसमें ब्रोमीन सेकंड पोजीशन पे आ रहा है और एक दूसरा प्रोडक्ट बनाएंगे जिसमें ब्रोमीन फोर्थ पोजीशन पे जाएगा, यानी पैरा पोजीशन पे। तो यहां पे हमारा एल्कोक्सी ग्रुप है। अब यहां से काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी यहां पे ब्रोमीन आएगा, राइट। तो ये याद हो गया होगा, दिस इज कॉल्ड पैरा प्रोडक्ट। पैरा वाला क्या होता है, मेजर होता है, बहुत पुराना टॉपिक है ये। और ये हमारा ऑर्थो प्रोडक्ट है, ऑर्थो जो कि माइनर होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया। अब चलो दूसरे रिएक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है फ्रीडेल क्राफ्ट। फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट। चलो पहले एल्काइलेशन देखते हैं। तो पहले हमें एक ईथर लेना है जिसमें बेंजीन होगा। यहां पे जैसे मैंने कहा ये एल्कोक्सी ग्रुप है। आपको क्या करना है, इसको रिएक्ट करवाना है एसाइल क्लोराइड से, ठीक है। एसाइल क्लोराइड क्या होता है, CH3Cl, या इसको और अगर सिंप्लीफाई कर दूं तो आप इसको RCl ले लो, यानी एल्काइल क्लोराइड। तो जब ये रिएक्शन होगा तो जैसे जानते हो कि ये क्लोरीन हटेगा और ये माइनस चार्ज के साथ हटेगा, जबकि ये प्लस चार्ज के साथ हटेगा। तो अब ये प्लस चार्ज या तो यहां पे हाइड्रोजन को हटाएगा या यहां वाले हाइड्रोजन को हटाएगा, ठीक है। और एक प्रोडक्ट बन जाएगा H और Cl के साथ मिलके HCl। तो एक प्रोडक्ट बन गया HCl और दूसरा प्रोडक्ट जो है वो हमारा प्रोडक्ट होगा ये वाला, जिसमें OR अपनी जगह पे है और यहां पे हमारे पास क्या आ गया, एल्काइल ग्रुप। तो हम इसको बोलते हैं एल्काइलेटेड प्रोडक्ट, एल्काइलेशन, ठीक है। और एक और प्रोडक्ट बनेगा, याद होगा ये हो गया माइनर। माइनर क्यों, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पे है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा, दूसरे प्रोडक्ट में हम यही चीज फोर्थ पोजीशन पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे OR है और अब फोर्थ पोजीशन जो कि यहाँ है यहाँ पे R आ गया। ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। ये हो गया मेजर प्रोडक्ट। अब बात करते हैं एसाइलेशन रिएक्शन की फाइनली, ठीक है। इसी के नीचे सो दूसरा हमारा रिएक्शन होगा विच इज कॉल्ड, लेट मी राइट द नेम, दिस इज कॉल्ड फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। इसमें क्या करना है, ईथर विद एल्काइल ग्रुप, एल्कोक्सी ग्रुप को आपको रिएक्ट करना है एसाइल ग्रुप से। अब एसाइल ग्रुप क्या होता है, CH3C+O है। तो जब आप इसको रिएक्ट करोगे तो अगेन यहां से ये पार्ट आपका पॉजिटिव के फॉर्म में निकलेगा, ये पार्ट आपका नेगेटिव के फॉर्म में निकलेगा। तो यहां पे भी एक हाइड्रोजन है और एक यानी इन 2 पोजीशंस पे हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और उसकी जगह पे लेगा।
सो एक प्रोडक्ट बना ये वाला जिसमें एसिटाइल ग्रुप है कुछ इस तरह से, तो ऑर्थो हो गया, ये प्रोडक्ट हो गया क्या ऑर्थो। चलो एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो है हमारा पैरा। ये एल्कोक्सी ग्रुप, और अब एक दूसरा यहां पे आपको लेना है डबल बॉन्ड ओ सी, तो ये हो गया हमारा पैरा प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये दो रिएक्शन है जिसमें फ्रीडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो रहा है। एल्काइलेशन का मतलब होता है बेंजीन में एल्काइल ग्रुप का ऐड होना। एसाइलेशन का मतलब होता है एसिटाइल ग्रुप का ऐड होना। एसिटाइल ग्रुप जिसको आप शॉर्ट में क्या लिखते हो, CH3CO। ठीक है, यहां चेक करो आप, ये क्या ऐड होता है, CH3CO, तो इसको हम बोलते हैं क्या, एसिटाइल ग्रुप। एसिटाइल जिसको हम एसाइल ग्रुप भी बोलते हैं। तो ये है फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन। एक लास्ट रिएक्शन और मुझे बताना है, सो द लास्ट थिंग इज देयर, It's, I think it was the fourth one. So this is the nitration of ether. Let's do this. This is your ether. Put on an alkoxy group. अब आपको इसे किससे रिएक्ट करना है, इसे रिएक्ट करना है नाइट्रेशन के लिए। हमेशा नाइट्रेशन के लिए HNO3 यूज होता है, पर थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज करते हैं। तो जब आप ये रिएक्शन करोगे तो अगेन आपको दो प्रोडक्ट मिलेगा, और वो दो प्रोडक्ट होगा, यहाँ पे एल्कोक्सी ग्रुप ऑलरेडी है, यहाँ पे NO2 लग गया। ठीक है, NO2, और साथ में एक प्रोडक्ट जो बन जाएगा वो है H2O। अगर आपको लिखना है तो लिख लो, बट इतना जरूरी नहीं है। पर एक और प्रोडक्ट बनेगा, वो है पैरा वाला, तो सॉरी, तो पैरा वाला प्रोडक्ट आपके यहाँ पे लगेगा, तो ये हो गया नाइट्रेशन। ऑफ कोर्स आई रिपीट, दिस इज योर ऑर्थो प्रोडक्ट जो कि माइनर होगा, और ये पैरा प्रोडक्ट जो कि मेजर होगा। ठीक है ना, मेजर का मतलब ये 81% लगभग बनेगा, 80% बनेगा, और ये बनेगा हमारा लगभग 19 या 20%। तो दिस इज हाउ I have completed the whole chapter, alcohol, phenol and ether. Whatever you have to say, do let me know, and then I'll be able to make it more, informative, more possibly useful and all that. With that, I must finish this here, and I will say thanks for watching, take care, and have a, good night.